Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you'll be doing fine. Okay, today we are going to end this chapter of the story, the Honeyguide's Revenge. And this will be the final part. Okay, in the first part, हमने देखा कि there was a greedy young man and he rarely used to share things with others, and he was very selfish and mean. So once what happened, there was a honeyguide event, and he used to tell about the honey that where it is. So he started following the bird, and what happened he arranged everything to got that honey, but what happened eventually कि जब उसने वो शहद ले लिया तो उसने the bird literally found the bird expected कि अब ये मुझे अपना share देगा, but he did not do that, and he started walking home ignoring that little bird. So अब आगे पढ़ते हैं. Jed chirped indignantly. Jingle stopped, stared at the little bird and laughed aloud. अच्छा जो जेड थी, वो जो bird थी, वो जो जब चहचहा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. She was very very angry. जिंगल का क्या हुआ, वो रुका, and stared का मतलब होता है घूरना, यानी कि उसने little bird को बहुत घूरा और देखा और काफ़ी ज़ोर से हंसा. You want some of the honey, do you? Ha! Who did all the work, received all the stings? Why should I share any of this lovely honey with you? You little nothing! So what happened? बड़ा जोर से हंसा और उसने कहा कि तुम्हें honey चाहिए ना? मैं तुम्हें क्यों honey दूँ? सारे stings मैंने लिए, मतलब जो bees थे उसने मुझे stings जो है वो डसे हैं, मारे हैं, और सारा काम मैंने किया, सारी मेहनत मैंने की है, कि तुमको ये honey क्यों मिलेगा? You little nothing, यानी कि सर तुम तो बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं, you are nothing in front of me. Be off and find yourself another supper. And with a wave of his arm, Jingle walked away. उसने कहा कि जाओ अपने लिए कोई और खाना ढूंढो. सपर कहते हैं शाम के चाय नाश्ते को, जैसे कि हम लंच करते हैं दोपहर में और रात में डिनर करते हैं. इन द मिड ऑफ द लंच एंड द डिनर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लाइक चाय एंड बिस्किट, ऑल दैट्स कॉल्ड सपर. So ये सब कहा और जिंगल जो है वो आगे वॉक करने लगा. Jed was furious. How dare this man break the age-old custom? But little Jed was not powerless. He would get his revenge. Jed ने कहा, Jed बड़ा गुस्से में आ गया. उसने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे इस आदमी की, उसने इतना पुराना जो एक यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ था, एक पुराने इससे चला आ रहा था कि ये हिस्से दिए जाते हैं और ये आदमी हिस्से देता है जब इनको हम कोई वे दिखाते हैं हनी का. But Jed was not powerless at all. वो बिल्कुल भी कम हिम्मत नहीं था. वो इसका रिवेंज इसका लेता. Several weeks later, Jingle again heard of the call of Jed, remembering the last time Jingle followed the little bird again. Several weeks यानी कि काफ़ी हफ्तों के बाद जिंगल ने अगेन वो कॉल सुनी जेड की, और उसको रिमेंबर यानी कि उसको वही याद आया कि उसने पिछली बार भी जेड ने ऐसी आवाज़ निकाली थी हनी दिखाने के लिए. सो उसने अगेन उसको फॉलो करना शुरू किया. Jed came to rest in a great thorn tree. Jingle quickly made a small fire and began to climb. Jed sat and watched. अच्छा, फिर what happened कि as usual से कि लास्ट में previously happened हुआ था कि उसको एक दरख्त के आगे वो ले गया था, और वो एक था थॉर्न ट्री. थॉर्न कहते हैं कांटों को. वो एक थॉर्न ट्री था. जिंगल ने जल्दी से अपना वो सारा जो हिसाब किताब उसने बनाया, वो उसने स्मॉल फायर लगाई अपनी उस लकड़ियों पे, और जिससे वो लास्ट टाइम मुंह में एक जो हॉलो था वो एक कोल्ड सा एंड लेके मुंह चढ़ा, मतलब ही डिड ऑल द सेम एज प्रीवियसली. सो बट वो क्या हुआ कि वो जेड जो था, जो बर्ड थी, वो आराम से एक चुपचाप करके बैठ गई और देखने लगी. Jingle climbed, wondering why he didn't hear the usual buzzing. अच्छा, जिंगल ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन वही सोचने लगा कि मुझे वो buzzing की आवाज़ आ क्यों नहीं रही. He was concentrating hard on this climbing and daydreaming about the honey. अच्छा, वो ये ऊपर चढ़ जा रहा था, सोच जा रहा था, concentrate यानी कि उस पर जोर दे रहा था, सोच रहा था जब वो climb कर रहा था. And daydreaming कहते हैं जैसे कि कोई daydreaming का मतलब कोई ऐसा ख्वाब देखता है अपने, यानी कि ख्वाब में कहते हैं ना कि बिल्ली के ख्वाब में छीछोड़े नजर आते हैं, तो यानी कि अच्छी चीज़ों का ख्वाब में देखने लगा कि मुझे इतना शहद मिलेगा, मैं लेके जाऊंगा and all that. Suddenly, अचानक क्या हुआ? He found himself face to face with a leopard. अचानक क्या हुआ कि उसको leopard से आमना सामना, वो leopard कहते हैं चीते को. The leopard was startled and angry at having her sleep so rudely disturbed. जो लेपर्ड था वो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, गुस्से में भी आ गया कि उसकी नींद को किसने इतनी बदतमीजी से, मतलब इतना रूडली इतना उसको डिस्टर्ब कर दिया. She narrowed her eyes, opened her mouth to reveal a large sharp teeth and struck the man, dragging her claws across his forehead. What happened? जो उसने अपनी आंखें थी उसको नैरो, जो ऐसे बहुत घूर के देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेयर करते हैं, तो उसने अपना मुंह जो है खोला और अपनी गुस्से से अपनी आंखें जो है वो काफ़ी ब्रॉड कर ली
और ताकि उसके अंदर से दांत वगैरह जो शार्प टीथ थे वो सब नजर आने लगे। एंड उसकी जो क्लॉज थे, अपने उसके जो पंजे थे, वो उसके जो फॉरहेड था जिंगल का, उसके फॉरहेड पे उसने गाड़ दिए। Jingle reached down the tree. He landed with a heavy thud on the ground, breaking several of his bones. He wore the scars of the leopards on his forehead for the rest of his life. जिंगल क्या हुआ, भागा भागा दरख्त से उतरने लगा और एकदम से हैवी थर्ड यानी कि बहुत प्रेशर से वो नीचे गिरा ग्राउंड पे और उसकी काफ़ी सारी हड्डियां भी टूट गईं। और ये वोर द स्कार्स यानी कि वॉर इज़ द पास्ट टेंस ऑफ फेयर, वॉर इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो उसको काफ़ी सारे स्कार्स हैं यानी कि ज़ख्म आए उसको लेपर्ड की, जो लेपर्ड ने दिए उसको फोरहेड पे, और वो जो सारी जिंदगी उसके वो निशान रहे। But the children of Jingle and the red children of the Jingle heard the story of Jed. Wherever they harvest honey, they are sure to leave the biggest and juiciest part of the comb for Jed. लेकिन चिल्ड्रन, जिंगल के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी कि इनके तीनों यानी कि 3 जनरेशन्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी चलती ही चली गई जेड की कि किस तरीके से जो है वो जेड ने बदला लिया था और ये सब हुआ था। सो उनकी वो उसने इतना बड़ा सबक दिया, इतना बड़ा उसको दिया कि व्हेन एवर जब भी वो कोई भी हनी हार्वेस्ट करते थे, निकालते, तो वो उनको ये श्योर होता था कि जो सबसे बिगेस्ट एंड जूसियस्ट पार्ट जो है वो जेड को हमने देना है, हमारी जब खैर है वो इसी में है। So here biggest and juiciest is the third form of the adjective, that's called the superlative. ठीक है, ये हम आगे इंशाल्लाह किसी चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, so here comes the end of the story. अच्छा, आज हम ऑलरेडी माइंड मैप एंड वर्ड मीनिंग के वर्ड्स में आपको ऑलरेडी क्लास में दे चुकी हूँ। सो मेक श्योर कि रीडिंग को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, इसको द वे ऑफ डिलीवरिंग और सारी इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस को देख लीजिएगा। ठीक है, here हमारा चैप्टर जो एंड होता है। We'll inshallah next video में I'll come up with the exercises, all the question answers and all the things and all the other exercises of your workbook. Take care, do like my video, subscribe as well. Take care, Allah Hafiz, see ya.